हेलो स्टूडेंट्स। मैं सब डॉक्टर उदय कुमार दुबे। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। कमला नेहरू विधि संस्थान की तरफ से आज अरसास की पाठशाला में हम यूटिलिटी एनालिसिस अर्थात उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित चर्चा करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मेजर ऑफ यूटिलिटी के बारे में चर्चा किया था। आज उसी क्लासेस को एक स्टेप और आगे बढ़ के यूटिलिटी की विश्लेषण के रूप में या यूटिलिटी का जो विश्लेषणात्मक पहलू है उसके बारे में अध्ययन करने की बात करेंगे। पुराने क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए ये देखा जा सकता है कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी एक पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन है या मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के रूप में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो आगे बढ़ करके यही कह सकते हैं कि जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है या उपयोगिता है, उस उपयोगिता के मापने की जो आवश्यकता है उसके मापने की जो इकाई है वो हमारी उपयोगिता है। या आप इसे संतुष्टि के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि संतुष्टि ही उपयोगिता को एक्सप्लेन करने के लिए साधन के रूप में है। इसी को आधार मान करके आगे की क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। The terms utility refers to the quantity of commodities by a virtue of which in satisfy our wants. Basically, we can say the when we want to consume the commodities because we have needs of that commodities. In these terms, by using the commodity, by consuming the commodity, our wants are satisfied in a number. So that number is called the utility. In other word, we can say that what satisfying power of units of goods is called the utility. It measure in terms of utils or unit of utility. Uh, as example, we if I have want a pen for examinations, and by somehow I arrange a pen uh, for examination, our intensity of needs of pen is decreasing. That decrement number is called the utility. Some another example, if I am hunger and I purchase or I arrange a bit of bread in 5 rupees or 10 rupees, after consuming that pieces of bread, our hungerness, our intensity of hunger is decreasing as much as is called the utility. So students, it is in the pleasure or satisfactions, value of money, we can say the drive from a persons from the consumer of consumptions of the goods or services, or from being in a particular places, and for the maximization of which all economic actions are motivated. We can say students, it cannot be measured in objective terms. Utility has three main form of measuring, that is total utility, marginal utility, and average utility. uh, Total utility is normally we can call it is the sum of all utility, and marginal utility is also be called as the individual units utility, and average utility is the proportional utility, or we can say the average utility per unit utility is called the three basic forms of the utility. Professor Alfred Marshall, in his famous book Principle of Economics, that published in 1890, has given the details concept of utility in journal. We can describe that utility measure means total satisfaction received from the consumption of commodities or services, or we can what we have to consume. So utility is measurable in terms of money, because while the consumption of the commodities we have to expend some money, some amounts, and that is the basic measurement of the utility as per the Professor Marshall. It is a cardinal approaches as Professor Marshall have to derive it. For Hindi medium student, the same content. उपयोगिता के बारे में जब हम चर्चा करते हैं छात्रों, तो उपयोगिता सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो उपयोगिता एक ऐसी इकाई है जो किसी उपभोक्ता को आवश्यकता पड़ने पर, उपभोक्ता की वस्तु की आवश्यकता होने पर, उस आवश्यकता के वस्तु के लिए जब वो साधन इकट्ठा करता है और कंजम्पशन करता है, तो प्रति इकाई से जो उपयोगिता की तीव्रता में कमी आती है, इसी को हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहा हूं, मुझे पेन की आवश्यकता है, अगर मेरे पास पेन नहीं है तो मैं एग्जाम नहीं दे सकता हूँ।
लेकिन मुझे कम से कम 2 पेन चाहिए, क्योंकि एक बैकअप के लिए भी मैं मान के चलता हूँ। तो पहला पेन अगर हमको मिल जाता है तो हमारा हमें लगता है कि चलो ठीक है, आज के डेट में पेन नहीं दूसरा मिला तो भी हमें कुछ तो हमारा काम हो जाएगा। जितना वो सेटिस्फेक्शन हमको मिला, अगर उसको रुपए में हम व्यक्त करना चाहें तो वो रुपया मापन हो गया, और जितना हमें संतुष्टि प्राप्त हुई वही उपयोगिता का मापन है। और इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उतने के बराबर में हमको संतुष्टि प्राप्त होती है। उपयोगिता इसी टर्मोलॉजी का नाम है कि उपभोक्ता जब किसी वस्तु को उपभोग करता है तो उपभोग करने के दौरान उसको उपयोगिता, उसकी वांट्स की में जितनी कमी आती है वस्तु के उपभोग करने पर, वही उसकी उपयोगिता के रूप में डिराइव की जा सकती है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की इच्छा करने या इसी वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा जो है, जब हम उसको प्राप्त करते हैं तो उस प्राप्त करने के लिए जितना हम व्यय करते हैं वो क्या है, उससे हमको उतनी उपयोगिता मिल रही है, इस नाते हम उतना व्यय कर रहे हैं। तो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए जो जो पावर ऑफ मनी वो यूज करता है, इसी को उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उपयोगिता सामान्यतः इकाई के रूप में मापी जाती है, जिसको यूटिल कहते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के उपभोग या किसी भी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले उपभोग के आनंद के रूप में, संतुष्टि के रूप में, मूल्य जो अदा कर रहा है उसके रूप में हम माप सकते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता यही चाहता है, उसको प्रति इकाई से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। इसीलिए आर्थिक क्रियाओं को प्रेरणा के रूप में हम मानते हैं कि उपयोगिता उसकी सबसे बड़ी इकाई के रूप में है। अब जब हमने ये चर्चा कर लिया कि उपयोगिता एक्चुअली क्या है, पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन है, तो मापा कैसे जाए। हम कई बार पूरा उपभोग करते हैं, कई बार हम एक ही इकाई को उपभोग करते हैं, कई बार हम उसकी एवरेज प्राइस की बात करते हैं। तो इसीलिए प्रोफेसर मार्शल ने इसे 3 भागों में विभाजित करने की बात कही थी। या ये कह सकते हैं कि उपयोगिता को मापन करने के लिए उपयोगिता को 3 फॉर्म में उन्होंने में डिफाइन किया था। पहला फॉर्म हमारा कुल उपयोगिता है, जिसे आप टोटल यूटिलिटी के रूप में जानते हैं। दूसरा हमारा सीमांत उपयोगिता है, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में जानते हैं। और तीसरा हमारा औसत उपयोगिता है, जिसे सामान्यतः हम एवरेज यूटिलिटी के रूप में जानते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस तीनों की व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में आप जानते हैं, उसी किताब में इसके बारे में चर्चा किया है, इस बारे में व्याख्या किया है। तो आइए उसी विचारधारा के अनुसार या उसी आधार पर कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता को एक एक करके देखते हैं। आपके सामने पहला टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट है। एक्चुअली इट रेफर्स टू सम्स ऑफ ऑल यूटिलिटी, or we can say it is the sums of all marginal utility obtained from the consumptions of different unit of commodities what a consumer have to consume, like first unit, second unit, third unit, all the units individual utility, or we can say marginal utility. When we have to calculate it, we have to sum it, then the total utility is obtained. Consumers spend their income in a systematic way so that they can be get the maximum satisfactions. Thus we can say the consumers use various goods and services to meet their needs. With the usage of these commodities they get satisfaction, and total of this satisfaction is known as the total utility. No one consumer have to satisfy while the consumption of only one units. So for being satisfaction, for getting satisfaction, they have to use 1, 2, 3 various number of the commodities. So total utility is derived from the sums of all utility. Consumers spend every parts of their incomes in such a way that they can get maximized satisfaction or utility. In the same way, total of utility derived from the use of more than one unit of the same commodities is also known as the total utility. As example, total of utility derived from the consumptions of first unit chocolate and utility from the second unit of chocolate is known as the total utility. Consumer always expand the maximize their total utility, so that we can say while the consumption of the each and every commodities, each and every units of the commodities sums is called the total utility. For the Hindi medium students, the same content. अब बात हम कुल उपयोगिता की कर रहे हैं, तो कुल उपयोगिता का मतलब यहां पर यह होगा कि जब उपभोक्ता कई सारी इकाइयों को उपभोग कर रहा हो। क्यों ऐसा? क्योंकि एक इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को संतुष्टि, उसकी पूरी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। तो जब वो एक से अधिक इकाइयों का उपभोग कर रहा हो तो उसकी प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता अलग अलग होगी, क्योंकि हर बार उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी।
तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं के संतुष्टि के अलग अलग पैरामीटर्स को, अलग अलग मापन को जब हम जोड़ देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, यह कुल उपयोगिता होगी। अब आप ऐसे ऑब्जर्व कर लो कि उपभोक्ता ने अपने उपभोग के लिए 3 इकाइयों को उपभोग किया, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई। अब तीनों इकाइयों से उसको अलग अलग संतुष्टि प्राप्त हुई। तीनों इकाइयों की संतुष्टि को अगर आप एक साथ जोड़ देंगे तो जो कुल उपयोगिता मिलेगी उसे क्या कहा जाएगा, जो सम्स ऑफ ऑल यूटिलिटी मिलेगी उसको क्या कहा जाएगा, इट इज टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ एक ऑब्जर्वेशन यह भी है कि उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग के दौरान अपने समस्त आय को व्यय कर देगा, और आय को व्यय करने के साथ साथ उसकी कोशिश ये होती है कि दे वांट टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वह चाहता है कि उसको उपभोग के दौरान अधिकतम संतुष्टि मिले। तो अधिकतम संतुष्टि वो वहां तक करेगा जब तक उसकी प्रति इकाई की संतुष्टि शून्य ना हो जाए। तो जब वह प्रत्येक इकाई के उपभोग के साथ संतुष्टि की बात कर रहा है, तो जितनी इकाइयों का उसने उपभोग किया प्रत्येक इकाई की उपयोगिता को जोड़ लिया जाए, और यही उसकी सम जो इसका है, योग जो है वो कुल उपयोगिता बनती है। मान लीजिए हमने चॉकलेट की हमें आवश्यकता थी, मैंने पहली इकाई चॉकलेट कंज्यूम किया, उससे हमको 10 रुपए की उपयोगिता मिली। दूसरी इकाई चॉकलेट हमने यूज किया, उसमें हमें 8 रुपए की उपयोगिता मिली। तो 10 और 8 मिलकर के हमारी कुल उपयोग, अगर मैं 2 इकाई उपभोग कर रहा हूँ तो हमें 10 और 8 मिलकर कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी, 18 प्राप्त होगी। तो यही इसी को कहते हैं कुल उपयोगिता। आइए देखते हैं छात्रों, इस कुल उपयोगिता को मापने के लिए जो विविध फार्मूले या फार्मूले अडॉप्ट किए जा सकते हैं, या फार्मूलों का जो कंसेप्ट है, कैसे टोटल यूटिलिटी को काउंट करने के लिए हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। कई फार्मूले दिए गए हैं, और उस फार्मूले को अगर हम आधार बनाने की बात करें तो उस फार्मूले में समानतः छात्रों, एक तो यू को अडॉप्ट करके हम उपयोगिता को मापने की बात कर सकते हैं। यू का मतलब है टोटल यूटिलिटी की बात कहते हैं। लेकिन कई बार फार्मूले में यह भी बात आती है कि यू इज कैलकुलेट एज द मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ आपको टेबल के रूप में इसी बात को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने कुल 6 इकाई उपभोग की है। पहली इकाई से हमारी आवश्यकता ज्यादा थी तो हमें 10 रुपए की यूटिलिटी का बोध हो रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी। हमने दूसरी इकाई उपभोग की तो हमें उससे कम उपयोगिता प्राप्त हुई, 8 इकाई मैंने मान लिया। तीसरी इकाई जब मैंने उपभोग की तो उससे और कम उपयोगिता प्राप्त हुई, हमने 6 इकाई मान लिया। चौथी इकाई उपभोग की तो चूंकि हमारी हर इकाई से हमारी आवश्यकता की संतुष्टि होती जा रही है, तो तीसरी इकाई से हमको उपयोगिता क्या मिली, 4 इकाई की मिली। पांचवी इकाई को जब हमने उपयोग किया तो हमें 2 रुपए की, 2 इकाई की उपयोगिता मिली, या 2 रुपए के बराबर की उपयोगिता मिली। और छठवीं इकाई हमारी अंतिम इकाई थी जहां पर हमको अब हमारी संतुष्टि पूरी हो गई है। ये हमने 6 इकाई को उपभोग करने की बात की। अब यहाँ मैं एयू की बात अभी नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं केवल बात आपके साथ टीयू की कर रहा हूँ। टीयू को आप इस रूप में देख लीजिए, जब हमने पहली इकाई को उपभोग किया तो हमें पहली इकाई को उपभोग से 10 रुपये की, 10 रुपए की उपयोगिता प्राप्त हुई। यहाँ पर हमारा टीयू क्या होगा, 10 ही होगा। अब अगर हम दूसरे 2 इकाई उपभोग करते हैं तो 2 इकाई के लिए हमने पहली इकाई में 10 उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी इकाई में 8 उपयोगिता प्राप्त हुई। इन दोनों उपयोगिता को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो उपयोगिता हमको प्राप्त होगी दूसरी इकाई के लिए वो क्या होगी, हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। हम ऐसे ही 3 इकाई को जब उपभोग करते हैं तो पहली इकाई 10, दूसरी से 8, तीसरी से 6, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है वो हमारी तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता है। ऐसे ही आप चौथी इकाई के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम 4 इकाई उपभोग कर रहे हैं तो पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई और चौथी इकाई को कुल मिलाकर हमें उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है, इन चारों इकाइयों तक का एमयू को जोड़ लिया जाए तो हमको चौथी इकाई की उपयोगिता प्राप्त होगी। यही आप पांचवें के साथ भी कर सकते हैं। अगर 5 इकाई उपभोग कर रहे हैं तो पांचवी इकाई की भी उपयोगिता मिला के यहाँ जोड़ दीजिए, और अगर छठवीं की बात कर रहे हैं तो छठवीं इकाई की भी उपयोगिता को यहाँ पर मिला करके जोड़ दीजिए। अब ये सारे फॉर्मूले आपको यहाँ आपको दिख रहे होंगे, इस रूप में आप देख सकते हैं। जिस इकाई को आप उपभोग कर रहे हैं उसके पहले की उपयोग की सीमांत उपयोगिता को, सभी सीमांत उपयोगिता को जोड़ लीजिए, ऑल सम्स कर लीजिए, आपको उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी, कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। और इसी एमयू को ही हम यू के नाम से भी जानते हैं। यू का मतलब आप यहाँ लगा सकते हैं कि यू इज द इंडिविजुअल यूटिलिटी। यू क्या है, एकल इकाई या प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता के रूप में ही कंसीडर की गई है। आगे के क्लासेस में जब मैं चर्चा करूंगा तो मैं टीयू के फार्मूले के साथ भी चर्चा करूंगा। क्योंकि यहाँ अभी मैंने एयू के बारे में चर्चा आपके साथ नहीं किया है तो इस पॉइंट को मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। बट हाँ छात्रों, इतना पहचान के लिए आपसे बता दूं कि अगर एयू आपको दिया गया है तो एयू में आप एन ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटी जो आपने कंज्यूम किया उससे गुणन फल कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर टीयू की प्राप्ति हो जाएगी। एक फार्मूला और है, एम यू एन अपॉन प्लस एम यू एन प्लस वन की बात कर लूं
अगर आपको टीयू की प्राप्ति करनी है, एक फार्मूला यह भी है। अभी हमारा टीयू क्या है, 10 है, और इसमें ये 8 आप जोड़ लीजिए, आपको इस इकाई की दूसरी इकाई की कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। जैसे टीयू एन -1, मतलब एक स्टेप पहले वाला टीयू, हमको निकालना है तीसरी इकाई की उपयोगिता हमको क्या मिल रही है, पर क्या टीयू मिल रहा है। तो हमने 18 दूसरी इकाई से उपयोगिता प्राप्त हुई, इसमें इस 6 को जोड़ दिया, और 18 और 6 जोड़ने के बाद जो हमको प्राप्त हुआ वो हमारी क्या होगी, तीसरी इकाई की टीयू प्राप्त हो जाएगी। तो इसी रूप में इसको हम फार्मूले के रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं। आइए एमयू को देखने की बात करते हैं। ये टीयू का फार्मूला का कंसेप्ट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है। एमयू क्या है, सीमांत उपयोगिता की बात कर रहा हूं। सीमांत उपयोगिता क्या है, इट रेफर्स टू द पर यूनिट यूटिलिटी, or we also we can say the additions of total utility while the consumption is called the marginal utility. Professor Marshall's approach is just the additions in total utility is called marginal utility. So while the consumption, if the consumer are increasing the units of consumption, so total addition in the marginal utility, total addition in the total utility is called the marginal utility. And in the description it is also we have to declare. Students, one another fact is marginal utilities may be positive, negative, or zero, but total utility is not. So focus on it, and later on in this lecture we have to define it. How can it? Formula for calculating the marginal utility: mu is equal to tu n minus 1. The current tu and the previous tu, if have to subtract from current tu to previous tu, we have to get the marginal utility. Here mu means the marginal utility, and it will also be called as the change in total utility. Okay, it is also be called as the change in total utility. Now let me explain this concept in Hindi for Hindi medium students. सीमांत उपयोगिता, छात्रों पता है आपको कि प्रति इकाई की उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यहाँ भी बात करीब वही होना है। उपभोग के इकाई में होने वाले परिवर्तन के कारण कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम सीमांत उपयोगिता के रूप में देखने की बात करते हैं। उपयोगिता की इकाइयों में वृद्धि के साथ साथ जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी वही वृद्धि की दर ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। हाँ, ये बात जरूर आप ध्यान रखिए कि यह धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। इसके अलावा कोई और जैसे टीयू की बात कर लूं या एयू की बात कर लूं, ये केवल धनात्मक ही रहेगा। ये तो ना तो जीरो हो सकता है, ना तो ये ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन एमयू के साथ एक कंसेप्ट है कि ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। इसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समानता आपके सामने है, mu इक्वल टू टी यू एन, मतलब अभी की का कुल उपयोगिता और इसके पहले की इकाई की उपयोगिता अगर हम देख लें तो हमें जो भी प्राप्त होगा इसे हम सीमांत उपयोगिता के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए इसी कंसेप्ट को टेबुलेशन के माध्यम से देखते हैं। सपोज हमने 6 इकाई को उपभोग किया, पहले हमें टीयू प्राप्त हो चुका था, उसी टीयू को मैंने आधार बनाते हुए यहाँ पर एमयू के ऑब्जर्वेशन की बात की। फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया हुआ था कि TUN-TUN-1। आइए एक एक करके देखने की बात करते हैं। अभी हमको पहली इकाई से हमको टीयू की प्राप्ति कितनी हो रही है, 10 हो रही है। और इसके पहले जो हमने उपभोग किया था, मतलब 0 उपभोग किया था, तो जब हमने उपभोग किया ही नहीं तो उस उपभोग से हमको उपयोगिता मिली कितनी होगी, 0। तो 10 में से 0 को घटा दीजिए, जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, एमयू कहलाएगी, उस इकाई की एमयू। दूसरी इकाई को जब हम उपभोग कर रहे हैं, यहाँ पर हमको एमयू प्राप्त करना है, दूसरी इकाई को उपभोग से हमें कुल टीयू कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। आगे थोड़ा बढ़िए, इससे पहले वाली उपयोगिता क्या थी, हमको टीयू में 10 थी, तो इसको इसमें से घटा देते हैं, जो हमें प्राप्त होगा वो हमें क्या मिलेगी, एमयू मिलेगी। इसका मतलब 18 में से अगर 10 को घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 8 हमारी क्या है, 8 हमारी क्या है, इज द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द नंबर ऑफ सेकेंड कमोडिटीज कंजम्पशन। ऐसे ही तीसरी इकाई को उपभोग से हमको कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है, 24। इससे पहले कितनी मिल रही थी, 18। तो 24 में से 18 को घटा देंगे, जो उपयोगिता हमको प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता में मिलेगी। अगर हम 24 में से 18 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या मिलेगा, 6 उपयोगिता।
इसी 6 को हम क्या कहते हैं, ये हमारी सीमांत उपयोगिता होगी तीसरी इकाई के लिए। ऐसे ही चौथी के लिए कुल उपयोगिता मिल रही 24, तीसरी के लिए चौथी इकाई के लिए कुल उपयोगिता मिल रही है 28, और चौथी इकाई के लिए 28 में से हम तीसरी इकाई की उपयोगिता मतलब 24 को घटा देंगे तो हमें कुल उपयोगिता कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। ऐसे ही पांचवी इकाई के लिए कुल उपयोगिता मिल रही है 30, और इसके पहली इकाई की उपयोगिता कितनी मिल रही थी, 28। 28 को 30 से घटा देंगे, जो भी प्राप्त होगा वो हमें क्या मिलेगी, MU of fifth unit for the 6th unit। हमको मिल अभी कितना रहा है, 30, इसके पहले हमको कितना मिला, 30। तो 30 में से 30 को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। तो ये इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी को ऑब्जर्व करने का तरीका है। फार्मूले के रूप में आपके सामने लिखा गया है कि क्या है तरीका। आप करंट की टीयू जिसकी बात कर रहे हैं उसका करंट टीयू ले लो, उसके पहले की इकाई का टीयू ले लो, इन दोनों को आपस में घटा दो, जो कुछ भी मिलेगा उस पहली इकाई की टीयू के रूप में आपको ऑब्जर्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ये आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ एक कैलकुलेशन करके भी लगाया है। हमको अभी मिल रही थी 10, इसके पहले कितनी मिल रही थी, अभी मिल रही थी 18, इसके पहले कितनी मिल रही थी 10। 18 में से 10 को घटा देंगे तो हमको दूसरी इकाई की टीयू की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आइए इसी चीज को अब हम एवरेज यूटिलिटी के लिए बात करते हैं। एवरेज यूटिलिटी छात्रों क्या है, सामान्यतः अगर एवरेज यूटिलिटी की बात आप कर रहे हैं, औसत उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो औसत उपयोगिता एक तरीके से प्रति इकाई उपयोगिता या तुलनात्मक दृष्टि से जब हम इकाई को उपभोग कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, तो जहां हम अंतिम इकाई का उपभोग कर रहे हैं उस इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता को अगर हम घटा दें नंबर ऑफ कंजम्पशन से, तो वह वो जो उपयोगिता हमको प्राप्त होगी उसे हम AU कहते हैं। इसके पहले कि मैं AU की चर्चा करूं, कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने वहां बात की थी कि MU का जो नेचर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आप कह सकते हैं जीरो भी हो सकता है। तो इसी चीजों से जुड़ा हुआ ये कंसेप्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप अभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए हो, तो ऐसी अवस्था में जो उपयोगिता आपको प्राप्त होगी, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, वो धनात्मक होगी, सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जब आप अंतिम इकाई को उपभोग कर रहे हो जहां आप पूर्णतः संतुष्ट हो गए हो, तो वहां से प्रति इकाई उपयोगिता मिलने की स्थिति क्या होगी, शून्य होगी। और तीसरा है, जब आप अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को उपभोग कर लोगे, तो अब वह आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा, आपको उपयोगिता नहीं दे रहा होगा, आप किसी दबाव में, किसी बहकावे में आके उस वस्तु का उपभोग कर रहे होगे, तो ऑटोमेटिकली इट हार्म्स टू यू। और जितना आपको हार्म्स देता है, आपके पैसे भी गए और आपको उसका लाभ भी नहीं मिला। उसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आपको नेगेटिव यूटिलिटी की प्राप्ति होती है। लेटर ऑन की क्लासेस में हम इसके बारे में, जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात होगी तो वहां इसकी चर्चा फिर आएंगी आपके साथ। आइए एवरेज यूटिलिटी की मैं बात कर रहा था, उस पॉइंट को देख लेता हूँ। एवरेज यूटिलिटी एक्चुअली क्या है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है टोटल उपयोगिता से। बल्कि हम ये भी कहते हैं कि एवरेज यूटिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ अ टोटल यूटिलिटी, बिकॉज individually we cannot be observed that AU. Individually we are not able to calculate the what is AU. For calculating AU, we must be have need the TU, and the TU is divided by the number of commodity, number of unit you have to consume, and the rendered amount, the product of this calculation is called the AU. As shown on the diagram, as shown on the formula, AU is equal to TU by N, and AU is equal to TU by Q. N stands for here number of consumption, and Q stands for here quantity of consumptions. For both mediums, for both type of students who have to use the N formula, or who have to use the Q for quantity formula, both for the both students, this formula are given here. As example, if we have to consume a 5 number of commodities, and we receive total utility from that consumption is 100. So 100 is divided by the 5, what the number of they have to consume, the product is called the average utility. 100 is here divided by 5, and the product is 20. 20 is the average utility. So this is the observation of the total average utility. फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, छात्रों औसत उपयोगिता से आज से किसी भी उपभोक्ता को उपभोग के दौरान पूरी प्रक्रिया का जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, वो कुल उपयोगिता के में उपभोग करने के लिए वो जितनी वस्तुओं को व्यय करता है उस वस्तुओं की संख्या से भाग दे दिया जाए, या जितनी वस्तु को उपभोग करता है उस संख्या से भाग दे दिया जाए, तो जो उपयोगिता प्राप्त होगी उससे हम क्या कहेंगे
इट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज कॉल्ड द एवरेज यूटिलिटी। अब इसी इसी इकाई को, जैसे मान लीजिए हमने हमने कुछ वस्तु को कंज्यूम किया, हमसे उससे 100 रुपये के 100 के बराबर में उपयोगिता प्राप्त हुई। हमने उस 100 रुपये की उपयोगिता के लिए 5 इकाई को उपभोग किया था। तो यहाँ पर एवरेज यूटिलिटी क्या होगी, 100 इज डिविजिबल बाई 20 रुपीज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड द एवरेज यूटिलिटी। तो ये है आपके सामने औसत उपयोगिता से जुड़ा हुआ कंसेप्ट। इसे ऑब्जर्व भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। टीयू को हम एन से सीरियल नंबर से डिवाइड कर देंगे। 10 को अगर हमें डिवाइड 1 से कर दिया तो जो उपयोगिता हमको क्या मिली, 10 मिली। 18 को डिवाइड 2 से कर दिया, जो उपयोगिता हमको मिली 9, वो हमारी एवरेज यूटिलिटी है। 24 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो हमको जो भी प्राप्त हुआ वो हमारी क्या है, 24 को 3 से कर दिया, हमको जो भी प्राप्त हो रहा है वो हमारे एयू है। ऐसे ही 28 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, हमको कितना मिला, 7 मिला। ऐसे ही 30 को भाग दे दिया 5 से, तो जो भी उपयोगिता थी उस उपयोगिता को हमें उपभोग किए गए नंबर से भाग देने पर जो भी उपयोगिता प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, एयू कहने की बात कहेंगे। तो ये था छात्रों एयू को मापने का तरीका। नट्स में आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट नहीं होती है, पहली इकाई बेसिकली हम कहते हैं, इसको हम इनिशियल यूटिलिटी भी कहते हैं। और जब हमारी उपयोगिता एमयू हमारी 0 से ऊपर होती है बट पॉजिटिव में रहती है, तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव यूटिलिटी कहते हैं। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो इसको हम जीरो यूटिलिटी कहते हैं। और इसकी अगला स्टेप क्या होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो मार्जिनल अगला स्टेप कि हमें प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती हुई मिलती है, इसको हम कहते हैं निगेटिव यूटिलिटी, निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को एक खाका जो हमें अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो आज के क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। अगली क्लासेस में जो विषय लेकर के हमें आपके साथ चर्चा करना है, वो एक्चुअली जिस विषय में हमें आपके साथ चर्चा करना है वो एक्चुअली वह विषय हमारा यूटिलिटी के लॉज के बारे में है। इसी डायग्राम को जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया है उस पॉइंट को एक डायग्राम के रूप में भी देख लेते हैं आज की क्लासेस के लिए। ये ओ एक्स अक्ष है और ये ओ वाई अक्ष है। ओ एक्स अक्ष पर हमने एक्स वस्तु को और ओ वाई अक्ष पर हमने यूनिट को, ओ एक्स अक्ष पर हमने यूनिट को दिखा रखा है और ओ वाई अक्ष पर हमने यूटिलिटी को दिखा रखा है। ये हमारी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है और ये हमें संख्याएं दी गई हैं जो 1 से लेकर के 7 संख्याओं तक दिया गया है। अब हम पहली इकाई से जो उपभोग कर रहे थे वहां पर हमको कुल उपयोगिता 18 के बराबर में मिल रही थी। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन में पहली इकाई के लिए पहली इकाई से हमको जो एमयू मिल रहा था वो हमारा 10 है, दूसरी से हमको क्या मिल रहा था, 8 मिल रहा था, और तीसरी इकाई से हमको क्या मिल रहा था उपयोगिता, जो हमने टेबलेशन में दिखाया हुआ था वो 6 था। तो पहली इकाई में जब हमें उपयोगिता 8 मिल रही थी, मैंने यहाँ 8 कर दिया। अगली इकाई से 6 मिल रही थी, हमने 6 ऐड कर दिया। अगली इकाई से जो उपयोगिता हमारी ऐड हुई थी 4, तो ये हमने आगे बढ़ाकर 18 पे कर दिया। और अगली इकाई से जो हमको उपयोगिता मिल रही थी वो हमारी 2 थी, हमने यहाँ पर 18 के ऊपर ऊपर करके 20 कर दिया। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट इकाई के लिए उपयोगिता मिल रही थी, पांचवी इकाई के लिए, वो भी हमारी सेम ही थी, तो यहाँ पर हमने 20 के हिसाब से दिखा दिया और आगे उसके बाद गिरती हुई थी। आइए इसी आंकड़े को एक बार हम पीछे से चल करके पीछे के टेबल से देख लें, आपको इसके बारे में ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए उपयोगिता पहली इकाई से हमको 8 मिल रही है, दूसरी से हमको 6 मिल रही है, तीसरी से हमको 4 मिल रही है, पांचवी से हमको 2 मिल रही है, छठवीं से हमको 2 मिल रही है, और सातवीं से हमको -2 मिल रही है। मैं इसी उपयोगिता की बात कर रहा था कि पहली से आपको 8 मिल रही है, दूसरी से आपको 14 मिल रही है, तीसरी से आपको 18 मिल रही है, चौथी से आपको 20 मिल रही है, पांचवी से आपको 20 मिल रही है, और छठवीं से आपको 18 मिल रही है। कैसे मिल रही है उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ दिया गया है। इसी पॉइंट्स को हम लोगों ने इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया है। पहली इकाई के लिए हमको कुल प्राप्त होने वाली उपयोगिता ये 8 है, दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता प्लस इसमें 6 हमने जोड़ दिया तो 14 हो गया, अगली इकाई के लिए 4 जोड़ दिया तो हमारा 18 हो गया, अगली इकाई के लिए हमने 2 जोड़ दिया तो 20 हो गया, और अगली इकाई के लिए हमने फिर से चूंकि हमें कोई एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिली थी तो फिर से हमें जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो 20 ही प्राप्त हो रही है, और अगली इकाई के लिए जो हमको उपयोगिता प्राप्त हो रही है 2 घटती हुई, मतलब 18 प्राप्त हो रही है। अब इसी पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिल गया, ये हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई। आइए इसी पॉइंट्स को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ भी वही पॉइंट है, हमने ओ एक्स अक्ष पर यूनिट और ओ वाई अक्ष पर यूटिलिटी को दिखाया है। ऑब्जर्वेशन के रूप में हमने वही आंकड़े रखे हुए हैं जो पिछले बार आंकड़े रखे हुए थे।
क्योंकि आंकड़े में हमने मार्जिनल यूटिलिटी को अलग से दिखाया था, तो उस आंकड़े के लिए मैं यहाँ पर टेबल भी आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ। पहली इकाई हमको 8 के बराबर मिल रही थी, दूसरी हमको 6 के बराबर में मिल रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं पहली इकाई हमको 8 के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, दूसरी हमको 6 के बराबर मिल रही है, तीसरी इकाई हमको 4 के बराबर मिल रही है, और चौथी इकाई से हमको 2 के बराबर मिल रही है, पांचवी इकाई से हमको 0 के बराबर मिल रही है, और छठवीं इकाई से हमको -2 के बराबर मिल रही है। ये सारी यूटिलिटी को हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, और इसे डायग्राम के रूप में जब हम प्रेजेंट कर देते हैं तो ये हमारी क्या होती है, इसी को हम एमयू के रूप में डिफाइन करने की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों ही विषयों को या दोनों ही डायग्राम को हम आपस में एक साथ मिलाने की बात कर लेते हैं, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच के रिलेशन समझ में आ जाएंगे। आपके अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी एक आवश्यक बिंदु है। ये ठीक वही डायग्राम है जो आपने इसके पहले देखा था। ओ एक्स पर हमने दिखा दिया यूनिट को, और वाई पर हमने दिखा दिया यूटिलिटी को, और ये है दोनों के मापने का तरीका है। बिना दोनों के मापने के तरीके के ये पॉइंट्स हम शो नहीं कर सकते हैं। आइए उसी मेजरमेंट को हम यहाँ पर एक साथ दिखाने की बात कर रहे हैं। ये था हमारा एमयू जो इसके पहले हमने अभी आपको देखा था, और ये था उसके पहले का जो हमारा टीयू था, उस दोनों को हमने देखा था। एमयू और टीयू को मिला दिया जाए, जहां पर एमयू जीरो है वहां पर टीयू अधिकतम है, जहां पर एमयू घटने लगता है वहां पर टीयू भी घटने लगता है, जहां पर जहां से बेसिकली एमयू एमयू जहां तक स्पीडर की अवस्था में है, वहां पर सामान्यतः हमारा एमयू भी वहीं से शुरू होगा। एमयू हमारा जहां से स्टार्टअप होता है, पहली छलांग हमारी इनिशियल यूटिलिटी हमारी वहीं होती है। ये आपके ऑब्जर्वेशंस में दिखाया गया है। तो इसी हिसाब से ये आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। अगली क्लासेस के बारे में मैंने आपके साथ कह रखा है, अगली क्लासेस जिसके बारे में हमें आपको जिससे चर्चा करनी है वो उपयोगिता के सिद्धांतों के बारे में है। उपयोगिता के सिद्धांत प्रोफेसर गोशन के द्वारा दिए गए हैं, तो बेसिकली हम चर्चा करेंगे गोशन के कौन कौन से दो सिद्धांत हैं उनके बारे में। यह हमारे अगले के लेक्चर का विषय होगा। तब तक छात्रों खूब पढ़िए, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, पढ़ने के साथ साथ अगर किसी भी तरीके से आपको सहायता है इकोनॉमिकली स्टडी की, तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए। जो भी छात्र इस क्लासेस से जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नए वीडियोस का अपडेशन आपके पास सहजता से और समय से प्राप्त हो सके। आज की क्लासेस के लिए छात्रों धन्यवाद। आशा करता हूँ विषय के छात्रों को जरूर इस क्लासेस का लाभ मिल रहा होगा, और उन्हें इस विषय से अपने क्यूरियोसिटीज को, अपनी जागरूकता को पूरा करने का जरूर मौका मिल रहा होगा। धन्यवाद छात्रों। आज की क्लासेस आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।